Bismillahirrahmanirrahim. Multan Public School and College for Boys and Girls. I am Mr Saeed Tahir. From Multan Public School and College. Now I will deliver a lecture on topic 14, identification of ions and gases, including the salts which we have studied already. There were the topics which we studied, the preparation of the soluble salts. Now we will study the preparation of insoluble salts. The insoluble salts are those when two soluble salts react together and insoluble salt is prepared by ionic exchange is known as ionic precipitation. For example, AgNO3 silver nitrate when reacts with sodium chloride aqueous solution, then silver chloride is formed in addition to sodium nitrate. Again, I repeat this, when silver nitrate aqueous solution is added in sodium chloride aqueous solution, we get AgCl, which is a solid precipitate, not soluble in water, and a salt which is soluble, NaNO3. So in this way we have seen here that Ag and Na, they have exchanged their positions. Sodium has gone to NO3 and formed NaNO3, while Ag has gone to chloride ion and formed AgCl, silver chloride. Silver chloride is insoluble. It does not dissolve in water. In this way, by ionic exchange, we form a solid solid silver chloride AgCl, which is an ionic precipitation. If we write the ionic equation for this reaction, Ag plus 1 plus chloride ion arrow AgCl. This equation involves only the ions which form the precipitate. Ionic equation shows only those ions which join together to form ionic precipitates or a covalent compound. So हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो आयनिक इक्वेशन होती है बेसिकली सिर्फ उन आयंस पर मुश्तमिल होती है जो कि उस सॉलिड पार्टिकल्स को बना रहे होते हैं या किसी कोवलेंट कंपाउंड को बना रहे होते हैं. और आयनिक इक्वेशन is very much important for the understanding of chemistry. You will see in different chapters there are a mention of ionic equations too. Our next slide is the identification of positive ions which form colored precipitate. I have divided the identification of positive ions in two separate tables. The first table is identification of positive ions. Positive ions include Fe plus 2, which is known as iron second or ferrous ion. Number 2, Fe plus 3, which is iron third or ferric ion. Then copper 2, copper second, Cu plus 2, this is that is copper ion. Chromium Cr plus 3 aqueous, chromium third ion. So these are 4 ions which are colored and included in your syllabus. In your syllabus, only these 4 colored forming ions, colored precipitate forming ions are present. So you should learn it by all means. So first of all, we study how Fe plus 2 ion is detected by the test. I have divided these 4 ions
in separate table because the first table which forms the positive ion becomes very easy for the students, and students do not hesitate or are not confused in this respect. फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल Fe+2 का टेस्ट क्या होता है, हमने 5 ड्रॉप्स ऑफ NaOH ऐड करने हैं तो डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट इज़ फॉर्म्ड, और व्हेन वी सी बाय दिस रिएक्शन व्हेन बाय एडिंग एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम इन्हीं डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट में एक्सेस ऑफ NaOH डालते हैं, मींस एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उस टेस्ट ट्यूब में थोड़े से डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट डाल के उसको एक्सेस ऑफ का मतलब है हाफ टेस्ट ट्यूब तक हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन डालते हैं। इफ़ द प्रेसिपिटेट हम देखते हैं कि रिमेन इनसॉल्युबल, देन वी से दिस इज़ Fe+2 आयन। तो Fe+2 आयन का टेस्ट ये है कि यू हैव टू ऐड sodium hydroxide 5 drops, dirty green precipitates are formed. When these dirty green precipitates are further treated with excess of sodium hydroxide, तो we see कि insoluble precipitate of Fe+2 is formed. ये वाला टेस्ट हम यहाँ पे स्टॉप नहीं करते, हम अमोनिया सोल्यूशन के साथ भी इसको टेस्ट करते हैं। ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया अगेन बाय टेकिंग ए न्यू सैंपल ऑफ Fe+2 साल्ट, तो उसमें भी डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट बनते हैं, और जब हम प्रेसिपिटेट बनने के बाद उसको दोबारा से चेक करते हैं बाय एडिंग एक्सेस ऑफ अमोनिया सोल्यूशन, then insoluble precipitate is formed, we get insoluble precipitate। यानी precipitate वाटर उस सोल्यूशन में अमोनिया सोल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होते बल्कि रिमेन इनसॉल्युबल। तो Fe+2 का इजी टेस्ट है डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट एक्सेस में इनसॉल्युबल, और NH3 में भी डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट और इनसॉल्युबल इन एक्सेस। नाउ वी कम टुवर्ड्स आयरन थर्ड Fe+3 विच इज़ फेरिक आयन। इसका जब टेस्ट करते हैं 5 ड्रॉप्स ऑफ NaOH इसमें डालते हैं, वी गेट रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट विच आर इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ द सोल्यूशन। देन हम अमोनिया टेस्ट करते हैं, वी ऐड अमोनिया एक्वस सोल्यूशन in the new sample of Fe+3 ions having salt, then red brown precipitate again is formed which remain insoluble when excess of ammonia is added in it. Third is copper second Cu+2 aqueous. When 5 drops of NaOH are added in the sample of the salt, if it contains Cu+2 ions, then blue colored precipitates are formed. जब एक्सेस में डाल के देखें तो रिमेन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, मीन वी गेट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। यही टेस्ट हम अगर दोबारा से अमोनिया सोल्यूशन के साथ करें तो थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 ड्रॉप से अमोनिया व्हेन अमोनिया सोल्यूशन इज एडेड टू कॉपर आयंस, देन ब्लू प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, और जब एक्सेस में डालते हैं तो ये प्रेसिपिटेट डिज़ोल्व हो जाते हैं टू डीप ब्लू सोल्यूशन, वेरी डीप ब्लू सोल्यूशन बनता है। तो ये इस तरीके से हमारे पास इसका भी ये रिज़ल्ट आता है। देन एट द लास्ट वी सी रो में क्रोमियम थर्ड आयन है। ये हमारे सिलेबस में कोई 1-2 सालों से ऐड हुआ है, उससे पहले ये हमारे सिलेबस में नहीं था। डार्क ग्रीन प्रेसिपिटेट बनाता है वाई व्हेन 5 ड्रॉप्स ऑफ NaOH आर एडेड, लेकिन जब हम इसको एक्सेस में डालते हैं तो PPT सॉल्युबल होता है इन एक्सेस में। और इस तरह अमोनिया सोल्यूशन में व्हेन वी ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया सोल्यूशन, डार्क ग्रीन प्रेसिपिटेट इज अगेन फॉर्म्ड विच रिमेन इनसॉल्युबल व्हेन एक्सेस ऑफ अमोनिया सोल्यूशन इज एडेड इन इट। तो इस टेबल में हमारे पास Fe+2 डर्टी ग्रीन बनाता है जो कि इनसॉल्युबल होता है दोनों सोल्यूशंस में। आयरन थर्ड रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाता है जो कि इनसॉल्युबल होता है इन दोनों सोल्यूशंस में। कॉपर सेकंड ब्लू प्रेसिपिटेट बनाता है NaOH डालने से या अमोनिया सोल्यूशन डालने से,
और ये इनसॉल्युबल होता है एक्सेस ऑफ NaOH डालने में, और सॉल्युबल हो जाता है और डीप ब्लू सोल्यूशन बनाता है जब एक्सेस ऑफ अमोनिया सोल्यूशन इज एडेड। और कॉपर क्रोमियम थर्ड में डार्क ग्रीन प्रेसिपिटेट बनता है दोनों सूरतों में, और PPT सॉल्युबल होता है एक्सेस में जब NaOH डाला जाता है, और PPT मीन प्रेसिपिटेट रिमेन्स इनसॉल्युबल व्हेन एक्सेस ऑफ अमोनिया सोल्यूशन इज एडेड इन इट। Now we come to the next slide, in which we have to study identification of positive ions which form white precipitate. There are 4 ions like zinc ions, aluminum ions, calcium ions, ammonium ion. ये सारे के सारे white precipitate बनाते हैं अमोनियम आयन के अलावा, यानी तीनों के तीनों जिंक, एल्युमिनियम और कैल्शियम, ये तीनों के तीनों वाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं। और इन वाइट प्रेसिपिटेट को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि सबका कलर एक जैसा है, लेकिन जो स्कीम मैंने इस टेबल में बनाई है, इट इज़ वेरी मच क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड कि जिंक +2 आयन जब इसका साल्ट का सैंपल लिया जाए and we add 5 drops of NaOH, we get white precipitate। और जब इसको excess of NaOH में डालते हैं तो PPT soluble यानी डिज़ोल्व हो जाता है, किस में? NaOH के एक्सेस में। और जब वाइट प्रेसिपिटेट बनता है 5 ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया सोल्यूशन डालने से, और उसको एक्सेस ऑफ अमोनिया में डाल दें, तो फिर again PPT become soluble in excess, mean PPT dissolves। तो जिंक के बारे में याद रख लें, जिंक दोनों सॉल्यूशंस में वाइट PPT बनाता है, NaOH हो या अमोनिया सॉल्यूशन हो, और दोनों के एक्सेस में सॉल्युबल होता है। ये इसकी पहचान है कि जिंक दोनों के अंदर सॉल्युबल होता है। अब चलते हैं हम एल्युमिनियम की जानब। एल्युमिनियम के इस टेबल के अंदर जब हम देखते हैं, वी गेट 2 डिफरेंट कलर्स। एक तरफ हम पहले देखते हैं कि वाइट PPT बनता है और प्रेसिपिटेट सॉल्युबल होता है एक्सेस के अंदर। एल्युमिनियम जब NaOH एक्सेस के साथ जब इसको ट्रीट किया जाए तो ये क्या होता है? डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन जब when we add 5 drops of ammonia, we get white precipitate which is insoluble in excess of ammonia solution। तो इसका मतलब है this is the difference between zinc ion and aluminum ion। zinc ion दोनों में एक्सेस में सॉल्युबल है, जबकि एल्युमिनियम आयन सिर्फ NaOH के एक्सेस में सॉल्युबल है, वो अमोनिया सॉल्यूशन के एक्सेस में सॉल्युबल नहीं है। तो यहाँ से हम इन दोनों की पहचान कर लेते हैं कि दोनों हालांकि वाइट प्रेसिपिटेट थे, लेकिन इन 2 टेस्टों से हमें पता चल गया कि जिंक आयन इज़ डिफरेंट फ्रॉम एल्युमिनियम आयन। Now we go towards calcium ion। Calcium ion is very easy to understand। ये भी white precipitate बनाता है, और ये जो white precipitate है ये insoluble precipitate बनाता है, यानी when we add excess of sodium hydroxide aqueous solution। यानी white precipitate जब 5 drops डाले जाएं, और precipitate remain insoluble जब excess of NaOH डाला जाए, यानी does not dissolve। तो पहले ही स्टेप में हमें पता चल जाता है। आप कहेंगे ये कैसे पता चलेगा? जिंक का भी टेस्ट करें वाइट, एल्युमिनियम का भी वाइट PPT, कैल्शियम का भी वाइट PPT। अगर इन तीनों में से पहले ही स्टेप में PPT इनसॉल्युबल आ जाएं एक्सेस के अंदर, तो ये कैल्शियम है। अगर सॉल्युबल आ जाएं तो फिर जिंक होगा या एल्युमिनियम होगा। फिर उसका फैसला कौन करेगा? अमोनिया सोल्यूशन करेगा। वाइट PPT तो बनेंगे दोनों सूरतों में, जिंक और एल्युमिनियम के, लेकिन जिंक का PPT सॉल्युबल होगा एक्सेस में, और एल्युमिनियम का PPT इनसॉल्युबल होगा एक्सेस ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन में। तो इस तरह से तीनों की पहचान बड़े इजीली हो जाती है। नाउ वी गो टुवर्ड्स अमोनियम आयन। अमोनियम आयन NH4+1 होता है, और जब इसके अंदर 5 ड्रॉप्स या थोड़ा सा हम यानी एक्वस NaOH डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, देन अमोनिया गैस इज़ प्रोड्यूस विद पंजेंट स्मेल। चुभने वाली सी बड़ी गंदी सी स्मेल है। और इसका टेस्ट ये है कि कैसे पता चलेगा कि अमोनिया ही है। टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू। ये रेड लिटमस पेपर को
क्या कर देती है, रेड से ब्लू कर देती है। इससे ये पता चला कि ये एक बेसिक गैस है। दिस इज़ ए बेसिक गैस हैविंग बेसिक करेक्टर्स, बेस लाइक करेक्टर्स। तो दिस टेबल इज़ अगेन वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइंड्स। अगर आप जस्ट 5 मिनट इस पर गौर कर लें तो आपको ये इजीली याद हो सकता है। और पहले वाला टेबल वैसे ही, उसमें कोई ऐसी बात या कोई ऐसी नहीं थी। तो दिस इज़ द टेस्ट ऑफ पॉजिटिव फाइंड। अब हम आगे बात करेंगे कि हाउ दिस टेस्ट इज़ कैरीड आउट इन लेबॉर्ट्री। तो उसकी इक्वेशंस क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर एंड आयरन आयन। कॉपर आयन में बेसिकली जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो OH आयन जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करता है, ये कॉपर आयन Cu+2 से रिएक्ट करके CuOH ट्वाइस बनता है। ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं बेसिकली हाइड्रोक्साइड्स के होते हैं। कॉपर होगा तो कॉपर हाइड्रोक्साइड, आयरन होगा तो आयरन हाइड्रोक्साइड, फेरस होगा तो फेरस हाइड्रोक्साइड, और फेरिक होगा तो फेरिक हाइड्रोक्साइड, आयरन सेकंड हाइड्रोक्साइड और आयरन थर्ड हाइड्रोक्साइड। तो हम देखते हैं कि इससे क्या होता है कि CuOH ट्वाइस जब बनता है गिव्स ए ब्लू PPT of copper second hydroxide with ammonia or sodium hydroxide, which dissolves in excess of ammonia to give a blue solution of an amine complex. आपके सिलेबस में जस्ट इतना है कि कॉपर आयन जब OH आयन से मिलेगा तो CuOH ट्वाइस बनेगा और उसका ब्लू कलर होगा कॉपर हाइड्रोक्साइड का, और ये इनसॉल्युबल इन एक्सेस में होगा, ये बल्कि NaOH में होगा। और जब अमोनिया डालेंगे तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा और डीप ब्लू कलर का सलूशन बन जाएगा। आयरन सेकंड आयन Fe+2 व्हेन रिएक्ट्स विद OH आयन वी गेट FeOH ट्वाइस, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट यानी हमारे पास हासिल होता है। चाहे आप अमोनिया गैस डालें या आप उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें, हर सूरत में। आयरन थर्ड आयन जब OH आयन से मिलता है वी गेट FeOH थ्राइस, forms a brown precipitate of iron third hydroxide with ammonia and sodium hydroxide, which is not soluble in excess of NH3 or NaOH. Now we come towards our next slide in which we discuss just zinc ion. Zinc ion when reacts with OH negative ion we get ZnOH twice, zinc hydroxide। ये एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है जिंक हाइड्रोक्साइड का, जो कि अमोनिया सोल्यूशन या सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों बोथ में डिज़ोल्व हो जाता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्सेस में डाला जाए सोल्यूशन या अमोनिया का एक्सेस में सोल्यूशन डाला जाए टू गिव ए क्लियर कलरलेस सोल्यूशन। आवर नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट क्रोमियम थर्ड आयन। Chromium third ion Cr+3 when reacts with hydroxide ion we get chromium hydroxide, which is a gray green or dark green color precipitate of chromium third hydroxide with ammonia or sodium hydroxide in both cases, which is soluble in excess of NaOH but not soluble in excess of ammonia solution. With sodium hydroxide a dark green precipitate is formed. तो डार्क ग्रीन प्रेसिपिटेट बनता है किसका, क्रोमियम का, जब आप इसमें NaOH डालते हैं या एक्वस अमोनिया डालते हैं। बस फ़र्क इतना है कि NaOH के एक्सेस में ये जो प्रेसिपिटेट है क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का, दैट इज़ सॉल्युबल बट इनसॉल्युबल इन अमोनिया सॉल्यूशन। आवर नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट द होमवर्क। Write all the tables for the rest of finds, for the test of finds in your notebook. Best wishes। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला आपको हर तरह की बीमारियों से, बलाओं से और दुनिया के आफात से महफूज रखे। अल्लाह ताला की करम नवाजी सब पे हमेशा निछावर होती रहे। Thank you very much. Allah Hafiz.